Hello students, introduction to chapter number 8 quadrilaterals we have done. Today we have to start the exercise 8.1. So first question is angles of a quadrilateral are in the ratio 3, ratio 5, ratio 9, ratio 13. Find all the angles of the quadrilateral. What is the question? We know a quadrilateral has total how many angles? 4 angles are there, and that angles are given in the ratio form. 3, ratio 5, ratio 9, ratio 13. In ratio form they are given, and we have to tell all the angles. It is very important question beta from examination point. So many times it is repeating. Only dekh lo first question of this exercise, of the first exercise, and 90% cases in the 90% cases this question is repeating in the exams, and very easy question it is. And we know whenever a quantity is given in the ratio form, then we have to let them it in the variable form. Variable form में let करते हैं to solve it. And generally which variable we are using? X. We are very familiar with the variable x. So we will write, let the angles of the quadrilateral are 3x, 5x, 9x and 13x. Clear? Let earlier angles which were in the ratio we will let in the variable form. Now by angle sum property of the quadrilateral, we know that angles of the quadrilateral, sum of the angles of the quadrilateral is always 360 degree. So now we will add all the angles and equal to we will put 360. ठीक है, ऐड कर दें सारों को, इक्वल में कर दिया 360, like 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360. हो गया. 3x, 5x, 9x and 13x when we will add we get 30x is equal to 360. 30x is equal to 360 हो गया. x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 will go in divide. 360 डिवाइड बाई 30, डिवाइड कर दिया 12 आ गया. x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12. नाउ x वैल्यू आ गई तो वी कैन टेल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. लाइक 3x है, x की वैल्यू 12 पुट करेंगे, 3 इंटू 12. 5x है, 5 इंटू 12. 9x है, 9 इंटू 12. एंगल्स आ जाएंगे. क्लियर? समझ आ गया हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the diagonals of a parallelogram are equal then prove that it is a rectangle. If diagonals of a parallelogram are equal then prove that it is a rectangle. Parallelogram given है and he is saying if diagonals equal हो जाएं इसके, because diagonals of the parallelogram are not equal, ठीक है, then show that it is a rectangle. तो बेटा सबसे पहले हमको in this type of questions firstly we have to see कि what is given to us and what we need to show. Like हमको देखो यहाँ शो करना है that ABCD is a rectangle. तो how we can show it? What does we need to show that ABCD is a rectangle? Firstly we will discuss the similarity between parallelogram and rectangle. Because देखो वो तो पहले ही similar है ना, जो similarity होएगी that is same in both. तो that we not need to prove. उससे कुछ अलग शो करना है, that can help us in the. तो opposite sides of a parallelogram are also equal and opposite sides of rectangle are also equal. So it is a similarity between them. ठीक है. The difference is that angles of a parallelogram are not right angle. This is the difference. But rectangle, all angles are right angle. So if we will show that angles of this parallelogram are 90 degree, then we can say that it is a rectangle. ठीक है. तो in this way we have to understand कि what we have to show, and now it is कि how we are going to show it. So that also we have to plan firstly. तो देखो कैसे करना है. Firstly we will take in triangle ADC and triangle BDC. Two triangles I have taken here which are made on the same base DC. See from the figure, DC base के ऊपर two triangles are there, ADC and BDC. ठीक है. AD इक्वल BC है. रीज़न अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की. वाई ही हैव गिवन अस पैरेललोग्राम? बिकॉज अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो दैट वी विल यूज़ AD इक्वल BC हो गया. AC इक्वल BD. वट आर AC एंड BD? सी फ्रॉम द फिगर, AC एंड BD आर द डायगनल्स एंड ही हैज सेड दैट डायगनल्स आर इक्वल. ठीक है, तो वो हो गया. वी विल राइट इट गिवन. CD कॉमन आ गया. DC या CD द सेम बेस ऑन विच द टू ट्राइंगल्स आर मेड, तो दैट इज
कॉमन बेस हो गया। तो बाय एस 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 रूल, तीनों साइड्स हैं, सो वी कैन से बाय एस 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 रूल ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो वी गेट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। सी ट्राइंगल्स ए डी सी एंड बी डी सी दोनों कॉन्ग्रेंट कर दे ट्राइंगल, तो वी कैन से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। अब अगर इसको बना लेना, वी विल राइट इट इक्वेशन फर्स्ट, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी आ गया। नाउ देखो एंगल डी प्लस सी विल ऑल्सो बी 180 बिकॉज पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम नेम ही किससे मिला है, पैरेलल लाइन से। एंड व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके अंदर एंगल्स बनेगा, इंटीरियर एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड देयर सम इज ऑलवेज 180। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो से डी प्लस सी इज 180 एंड डी एंड सी आर इक्वल, तो वी कैन चेंज देयर नेम, मतलब वी कैन गिव एंगल सी नेम टू एंगल डी और एंगल डी नेम टू एंगल सी, मतलब इंटरचेंज वी कैन डू। तो यू कैन सी हेयर एंगल सी नेम आई हैव गिवन एंगल डी प्लस एंगल डी हो गया 180। एंगल डी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा बेटा, 2 एंगल डी। ठीक है, एंड 2 विल कम इन डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल आ गया, एंगल डी आ गया 90 डिग्री। इफ एंगल डी इज 90 तो एंगल सी विल बी ऑल्सो 90 बिकॉज सी एंड डी आर इक्वल। ठीक है, तो सी एंड डी हमने प्रूव कर दिया 90। सिमिलरली ए एंड बी ऑल्सो कैन बी शोन 90, वी नॉट नीड टू शो बिकॉज पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट से दे विल बी ऑल्सो 90। क्लियर, तो सिमिलरली ओनली यू हैव टू राइट सिमिलरली ए एंड बी विल बी ऑल्सो 90। इसका मतलब क्या हो गया, सारे एंगल्स 90 हो गए, ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर राइट एंगल्स। तो उससे क्या हो गया, दैट इट इज ए रेक्टेंगल, एक ऐसा पैरेललोग्राम हुज ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स, दैट इज अ रेक्टेंगल। इन दिस वे वी विल शो। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन शो दैट इट इज अ रोम्बस। हियर नो पैरेललोग्राम नो रेक्टेंगल इज गिवन, उसने सिंपली क्वाड्रिलेटरल ओनली। ठीक है, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड इक्वल नहीं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इफ डायगोनल्स ऑफ ए quadrilateral bisect each other at right angles then show it is a rhombus. Yes, it is the property of a rhombus that its diagonals bisect each other at right angle, but here we have to prove it. इसकी प्रॉपर्टी है rhombus की, बट यहाँ हमको प्रूव करके दिखानी है that if the diagonals are bisecting each other at right angle then surely it is a rhombus. कैसे शो करेंगे देखो, firstly diagonals bisect each other at right angles, what is the meaning of it? Bisect करना that is dividing into equal parts, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली एट राइट एंगल्स मीन्स दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो इन द फिगर यू कैन सी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया एंड यू कैन सी डायगोनल्स जहाँ पे कट करे हैं दे आर राइट एंगल्स वी हैव टू मेक, एंड ऑल्सो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, ओ ए इक्वल ओ सी है, ओ बी इक्वल ओ डी, सी फ्रॉम द फिगर ओ ए इक्वल ओ सी बिकॉज इट इज गिवन दैट डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब करना कैसे प्रूव, what is the property of rhombus? देखो because only quadrilateral it is given and we have to show it is a rhombus. तो rhombus की property है that its all sides are equal. It is not given to us. दिया तो नहीं ना कहीं कि इसकी सारी साइड इक्वल है, but if we will show that its all sides are equal then we will say that it is a rhombus because इसकी सारी साइड इक्वल होगी। तो देखो कैसे शो करना है, फर्स्टली we will take triangle AOD and COD. See from the figure AOD COD, मतलब मेनली हमको यही देखना है दैट व्हाट इज गिवन टू अस हाउ वी कैन यूज इट। ठीक है, उसको कहाँ पे प्रॉपरली फिट करें, बस दैट विल हेल्प अस एंड सम विल बी सॉल्व। तो ए ओ डी एंड सी ओ डी ट्राइंगल्स ले लिए, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी होएगा, दैट ओनली ही हैज गिवन के डायगोनल आर बाइसेक्टिंग। ओ डी बेटा कॉमन हो जाएगी दोनों में, ओ डी साइड इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स एंड एंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, एंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो गिवन टू अस दैट डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग। तो बाय प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, देखो 2 साइड्स है एंड इंक्लूडेड एंगल इज देयर, सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए देन वी कैन से दैट ए डी इक्वल सी डी है बाई सी पी सी टी। इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट दैट मीन्स ए डी इक्वल सी डी है बाई सी पी सी टी। सिमिलरली अब मैं देखो ए ओ डी की जगह बी ओ सी ट्राइंगल ले लेता, COD triangle is same but on the place of if AOD we will take BOC, तो BC equal CD आ जाएगा। ठीक है,
देखो आई हैव रिटन ऑल्सो कि सिमिलरली हम इस तरह से शो कर सकते हैं बी सी इक्वल सी डी, दैट यू विल शो ऑल्सो. आई हैव रिटन हेयर सिमिलरली बट यू हैव टू शो इट ऑल्सो. एंड ऑल्सो इट कैन बी शोन ए बी इक्वल बी सी है, ए बी इक्वल बी सी. फॉर ए बी इक्वल बी सी वी नीड विच ट्राइंगल. देखो ए बी कौन सी साइड, ए बी इज द साइड ऑफ विच ट्राइंगल, ए ओ बी सी इज द साइड ऑफ विच ट्राइंगल, बी ओ सी. तो ए ओ बी एंड बी ओ सी को भी कॉन्ग्रेंट शो कर देना बिल्कुल सेम मेथड से. कौन सा सेम मेथड, वन इज डायगोनल बाइसेक्ट गिवन है, एक साइड कॉमन हो जाएगी, वन एंगल विल बी 90-90. सो ऐसे वी विल शो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो अब देखो फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशंस व्हाट वी विल गेट. फर्स्टली वी हैव शोन ए डी इक्वल सी डी है, देन सिमिलरली आ गया बी सी विल बी ऑल्सो इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी. तो इन तीनों इक्वेशन से व्हाट वी विल गेट, ए बी बी सी सी डी ए डी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. And if a quadrilaterals all four sides are equal then we can say it is a rhombus. Some students can think कि स्केयर की भी सारी साइड इक्वल होती हैं, बट स्केयर के एंगल्स भी राइट एंगल होते हैं. हेयर वी हैव नॉट शोन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ना ही हम शो कर सकते हैं ना ही हमने किया है. अप टू नाउ ओनली वी हैव सेड दैट एक क्वाड्रिलेटरल है whose all sides are equal and its diagonal are bisecting each other at right angle. So this is the only property of a rhombus. ठीक है, in this way we will show it is a rhombus. I hope you understand. Thank you.